Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Am I audible? Last row, can you please raise your hand if you can hear me? Thank you. Well, I've been assigned checklist and major issues identified during QCR, and that's what my expectation from the listener sitting over here. कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. My expectation from students sitting over here is that everyone would be learning something, and whenever he'll be joining or she will be joining back the firm, they'll try to add some value. Sir, very quick, very brief history. QCR program was issued first in 2003, later it was revised in 2009, 15, and presently we have got QCR framework 2019. Why QCR rating? Well, it's a statutory requirement. Listed companies Code of Corporate Governance Regulations 2019 require every company to appoint external auditors, a firm which has been given a satisfactory rating under QCR program. So for listed companies, it's a statutory requirement. Further, this scope was further enhanced by SECP's SRO 1044/2015, dated October 22, 2015, which required non-listed companies of the following categories to appoint a chartered accountant firm as its external auditor, which holds a satisfactory QCR rating. यानी अदर देन लिस्टेड, अभी थोड़ी देर पहले पिछली प्रेजेंटेशन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हुआ था. So public interest company, large size company, public interest and large size companies which are licensed/formed under section 42 and 43 of the ordinance, all these are required to appoint QCR rated audit firms since it is requirement of SECP SRO 1044. Moving towards presentation outline, I've briefly outlined. First, I'll be taking up ISQC 1, then audit report, audit execution phase, planning and reporting, presentation and disclosure, and then the checklist. ISQC 1, my friend Imran just have made you gone through this particular area. Since it has been observed by our department and a lot of queries are arising in this particular area. So I prioritized this area. Ineligibility of the firm to act as auditor, instances were noted where the firm was not eligible to be appointed as auditor, whereas it issued audit report for the year, non-compliance of Code of Ethics and Code of Corporate Governance. What sort of instances were observed? Firm audited PIC, LSC, though it did not have QCR rating. We just have noticed the specific SRO. So this was strange, but common observation, especially for the new firms who are not aware of the law. They unfortunately conduct LSC and then they come for QCR. Engagement partner rotation, instances were noted where engagement partner was not eligible to be appointed as auditor. However, engagement partner signed audit report for the year. Again, it was non-compliance of listed companies Code of Corporate Governance 2019 and Code of Ethics. Instances noted included firm audited PIC for more than 5 years, and engagement partner was not rotated. यानी मुसलसल छठे साल सातवें साल ऑडिट करते चले जा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है बट अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट का नहीं पता है, तो आगे नॉन कंप्लायंस कंप्राइज हो रही है. इसमें एक और यूनिक इंस्टेंस हम लोगों ने नोट किया कि फर्म के पार्टनर दो डिफरेंट फर्म्स में पार्टनर थे, बोथ पर QCR rated. What they did was that they complete 5 years in one firm and then rotated the firm to the other firm. But unfortunately, the engagement partner was the same. Clarification was sought from SECP and they were very clear that this is not appropriate since engagement partner rotation was required. So the issue was not mitigated even with the rotation of the firm. Yes, sir. Next is list of clients submitted to Quality Assurance Department. This is again a very recent issue that has been promptly highlighted. Instances have been noted where a list of audit engagements submitted by the firm was incomplete. Previously, the department was not exercising such activities, but now after recent changes, Quality Assurance Board has emphasized that Quality Assurance Department should exercise some procedures, and that's what we have engaged now.
the lists are compared, the data is compared with SECP and some other sources as well are evolved, and with time this thing has emerged. Retention of audit documentation. The firm has documentation policy of retention of audit working papers as 5 years. बाज़ जगहों पे पॉलिसी होती ही नहीं, और ये भी कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है कि अगर पॉलिसी है तो 5 साल की पॉलिसी है, जबकि ICAP की काउंसिल का डायरेक्टिव 4.19 है, विच रिक्वायर्स इट टू बी मिनिमम 6 years. फाइल असेंबली की मैं बात करूंगा. इट वाज नोटेड दैट द फाइल्स वर नॉट आर्काइव्ड एंड मॉडिफिकेशन ऑन रिव्यू डेट was possible despite the file status being archived. Archiving का period ISQC 1 का पैरा 45 and A54, ये दोनों archiving का period देते हैं कि firm अपनी policy खुद बनाए, but in no circumstances this period should be more than 60 days. ये पैरा A54 of ISQC 1 categorically state करता है. So इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे पॉलिसी है ही नहीं, और अगर है तो इसकी कंप्लायंस, इसकी फर्म मॉनिटरिंग कैसे कर रही है, क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिसकी बेस पे ये इंश्योर किया जा सके कि क्या 60 दिन के बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगी. ऑब्वियसली ये 60 डेज की जो एक एनहांसमेंट दी गई है ये उन पर्टिकुलर एरिया से पर्टेन करती है विच आर नॉट दैट मच रिक्वायरमेंट. ऑडिट रिपोर्ट जिस टाइम पे साइन की जा रही है उस टाइम पे मेजर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है. इट्स सॉर्ट ऑफ असेंबली फैसिलिटेशन कि फाइल को असेंबल कर लें, रेफरेंसिंग अगर रिक्वायर्ड है तो रेफरेंसिंग कर लें. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इससे पहले हो चुकी है. सर हम क्वेश्चन आंसर एंड पे कर लें, मतलब वो टाइम हम ओवर रन ना कर दें. सॉरी, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम क्वेश्चन आंसर एंड पे कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पिछले साथी ने ना टाइम थोड़ा ऊपर ले लिया. सो थैंक यू सर. Network firm instances were noted where the firm was not part of group. However, they have used the name of the group on the letterhead. यानी फर्म विजिट की, हमारे रिव्यूअर ने नोट किया कि फर्म जो है वो क्लेम कर रही है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन जब हमारी टीम ने उसको एवेल्यूएट किया, वेबसाइट पे जाके देखा फॉरेन पार्टनर जिसकी एफिलिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान में या तो पार्टनर ही नहीं था उनका, या पाकिस्तान में जो पार्टनर था वो कोई और था. जी ठीक है. Instance was noted where firm was part of global network but no documentation was available in respect of implementation of monitoring procedures on a network basis. अमूमी तौर पे जब नेटवर्क का हिस्सा बनती हैं फर्म्स तो एक मॉनिटरिंग प्रोसीजर भी चल रहा होता है, और उससे एसोसिएटेड एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है कि क्या फॉरेन पार्टनर ने यहाँ पे आके या कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मंगवा के उन्होंने कोई असेसमेंट किया है, कोई रिव्यू किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने क्या मॉनिटरिंग पॉइंट्स निकाले हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं, क्या वैल्यू एडिटिव डेफिशिएंसीज निकाली हैं, जिनकी बेस पे फर्म फर्दर इंप्रूवमेंट कर सके. तो इससे एसोसिएटेड कुछ जगहों पे हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली. साइक्लिकल रिव्यूज पे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी. साइक्लिकल रिव्यू जो है वो भी पैरा 48 to 51 ऑफ ISQC 1, इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इंस्पेक्शन / रिव्यू ऑफ एटलीस्ट 1 completed engagement for each partner should be available for review within a span of 3 years. यानी हर engagement partner की 3 सालों में कोई एक फाइल का साइक्लिकल रिव्यू होना ISQC 1 की रिक्वायरमेंट है. Was it for the international group or as a local group भी तो हो सकता है ना किसी जी इंटरनेशनल ग्रुप ही है, वो उन्होंने सही हाईलाइट किया है. बाद में आ रहा है ना सेकंड में. जी ग्लोबल का वर्ड हम ऐड कर देंगे. अच्छा इंटरनेशनल. EQCR कंसल्टेशन रिव्यू सुपरविजन एनुअल इंडिपेंडेंस कंप्लायंस कंफर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल. यानी EQCR रिव्यूअर अपॉइंट तो हो गए, लेकिन उसकी अपनी इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन ही फाइल में मौजूद नहीं है कि क्या वो जिस एंगेजमेंट का EQCR कर रहा है क्या वो खुद इंडिपेंडेंट भी है या नहीं है. All engagements selected were reviewed by engagement partner himself, who is also the partner in charge of compliance. अब ये चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR उसको फुलफिल नहीं कर पाती कि वो अपनी ही फाइल का EQCR करता है. इस हवाले से CCG 2019 बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि 2000 अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी फाइल का रिव्यू नहीं करना, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ही हैज टू चेंज आफ्टर 5 years.
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में तो फर्म ही रोटेट होगी, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में आफ्टर 5 years अगर पार्टनरशिप है, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो पार्टनर भी रोटेट हो सकता है। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो फर्म 5 साल बाद रोटेट करना सीसीजी की रिक्वायरमेंट है। Instances were noted whereby engagement quality control reviewers sign off were not appearing. Again उन्होंने EQCR checklist लगी हुई है, लेकिन जिन साहब ने EQCR परफॉर्म की है उन्होंने साइन ही नहीं किए हुए। Instances were noted whereby date of review was not appearing in the audit working papers again, or were after the date of audit report, क्योंकि EQCR की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट से पहले की है। Instances were noted whereby adequate documentation was not available in respect of consultation on difficult matters. ये भी एक यूनिक सा पॉइंट है। बहुत सारी फर्म्स बाज़-औक़ात कोई टेक्निकल बड़ा स्ट्रिंजेंट सा या बड़ा कम्प्लेक्स सा मामला आ जाए तो उसके ऊपर कंसल्टेशन ले रही होती हैं, लेकिन कोई फॉर्मल या इवन इनफॉर्मल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी इंस्टांसेस हमारी टीम ने नोट किए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की हुई। ट्रेनिंग्स के हवाले से ट्रेनिंग्स एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट CPD आवर्स, स्टाफ की कोई ट्रेनिंग नहीं की करवाई हुई, या अगर करवाई हुई है तो उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। Instances were noted where CPD hours of the engagement partner were also incomplete. Engagement specific and annual independence confirmations were not available. Communication of policies and procedures, ये again बड़ा अच्छा control procedure है जो firm adopt कर सकती हैं कि जो भी ISQC से related firm की policies and procedures हैं उनको trainee students में या बाकी staff में disseminate कर दिया जाए और उसके बाद उनसे साइन ऑफ लिए जाएं कि आपने इनको पढ़ लिया है और आप इसको कंप्लाई करेंगे। अगर फर्म इस एक्टिविटी को एनुअली या कुछ अर्से बाद रिपीट करती है तो उसका बेनिफिट ये हो सकता है कि लोग टाइम के साथ साथ उसकी कंप्लायंस को वाकई एडहेयर करना शुरू कर रहे हैं। The next part of my presentation is audit report. Audit report में instances were noted where multiple qualifications were given in auditor's report, but the potential impact was not assessed with respect to pervasiveness. ISA 705 का पैरा 5A या B है जो pervasiveness को define करता है, और वहाँ वो specifically ये एक definition का part है जो ये include करता है कि परवेजिवनेस जो है वो कन्फाइंड टू वन हेड भी हो सकती है अगर वो अकेला ही सब्सटेंशियल हो जाए। इस चीज़ को हमने देखा कि लैग किया जाता है। इस पे आगे केस स्टडी भी हम करेंगे। Auditor has added emphasis of the matter paragraph in audit report and the matter highlighted was not evaluated for modification in audit report. कि एम्फेसिस ऑफ द मैटर जो है उसमें बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि लॉ की नॉन कंप्लायंस डाली होती है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ही एवेल्यूएट नहीं किया होता कि कहीं वो लॉ की नॉन कंप्लायंस जो है उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई तो नहीं कर देना चाहिए था। Instances were noted where implication of non-compliance with laws, again ये similar repeat हो रही है कि law की non-compliance है। ये emphasis से थोड़ा सा different इसलिए कि emphasis तो नहीं दिया हुआ लेकिन law की non-compliance है जिसे auditor ने ML में report किया हुआ है, लेकिन ML में report करने के बावजूद उसका potential impact कि क्या ये non-compliance जो है क्या इसका impact materiality level से ऊपर है, और अगर ऊपर है तो क्या मुझे अपनी report modify तो नहीं करनी चाहिए। इस तरह की कोई assessment मौजूद नहीं थी। CAM के हवाले से appropriate audit procedures were not included in the CAM, or significant deficiencies were noted in CAM included instances where the auditor should have modified the audit opinion instead of reporting them as CAM. Other matter paragraph was included instead of emphasis of the matter paragraph. ये भी एक common problem हमें या common mistake हमें नजर आती है कि emphasis of the matter include किया जाता है उस matter पे जो financial statements में already disclose हो, तो already disclosed matter है लेकिन other matter paragraph के heading में caption कर दिया गया, और फिर appropriate wording was not used when the prior year financial statements was audited by another auditor. Audit report एक end पे line include कर रही होती है कि last year audit was conducted by another auditor, तो at times वो omit थी या अगर मौजूद थी तो complete नहीं थी क्योंकि उसमें date भी आ रही होती है। Basis of adverse opinion, instances were noted where sufficient and appropriate audit evidence was not available on areas
नॉट इंक्लूडेड इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। ये भी एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है। और इस पर्टिकुलर केस में ये था कि बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में मल्टीपल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, लेकिन वो एरियाज जिन पे क्वालिफिकेशन नहीं दी गई उनके ऊपर कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है। इस प्रीमाइज पे कि मैंने एडवर्स ओपिनियन दे रही है तो ऑडिटर शायद ये समझ रहा है कि मुझे बाकी बाकी एरियाज पे भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, QAB का ये स्टांस है कि जिन एरियाज पे क्वालिफिकेशन दे दी स्कोप लिमिटेशन की बेस पे, वहाँ उन तक की हद तक तो शायद ये मामला चल जाए, लेकिन उसके अलावा बाकी मामला जिनको उस ऑडिटर ने बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में इंक्लूड नहीं किया, उन पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। Information other than financial statements and auditors report thereon. Instances were noted where audit report includes paragraph on other information. However, annual report comprise of only financial statements. ये थोड़ा कंपनीज एक्ट के साथ मैं लिंक करूंगा कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो 3 मिलियन या इससे ऊपर की कंपनीज की के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो डायरेक्टर रिपोर्ट बने। लेकिन ये स्टांस थोड़ा डिफरेंट है कि उन कंपनीज की बात हो रही है जिनका 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल है। उनके केस में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मौजूद हैं और अदर इन्फॉर्मेशन कोई है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी ऑडिट रिपोर्ट में अननेसेसरी अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा इंक्लूड कर दिया। On the contrary, second point इसका है, other information paragraph was not included in the audit report despite the fact that company was required to include director's report in annual report. यानी 3 मिलियन से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है, डायरेक्टर रिपोर्ट was other information और उसका that was subject to audit procedures, but other information paragraph was not included in audit report. Next is material uncertainty relating to going concern. Instances were noted where inconsistency of wording was noted with ISA 570, and another unique instance was noted that the matter was duplicated by including in material uncertainty in CAM, यानी duplicate किया हुआ था material uncertainty का मामला. Next is case study. I'm not sure whether this has been disseminated or not. आप लोगों तक नहीं पहुंची, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। केस स्टडीज के कुछ मैंने पेजेस दिए थे, वो आप तक पहुंच जाते हैं, हम तब तक आगे चलते हैं। इसमें डेफिशिएंसीज नोटेड ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज। रिटायरमेंट बेनिफिट की एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि रिटायरमेंट बेनिफिट नो रिकग्निशन ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज डिस्पाइट द मिनिमम एम्प्लॉयज वर अबव द थ्रेशोल्ड। ये लॉ मौजूद है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए 20 या इससे ज़्यादा और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए 50 या इससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हों तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ग्रेच्युटी की शक्ल में हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड की शक्ल में हो। लेकिन इंस्टांसेस नोट की हमारी टीम ने कि कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। नो डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेच्युटी। ये भी एक कॉमन हमें चीज़ नज़र आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेट्स से एम्प्लॉयज़ डिस्क्लोज किए हुए हैं 300 और ग्रेच्युटी की लायबिलिटी जो क्रिएट की हुई है वो 150 एम्प्लॉयज़ की हुई है। अब वर्बल एक्सप्लेनेशन जो इंगेजमेंट पार्टनर या उनकी टीम QAD की टीम को प्रोवाइड कर रही है वो ये है कि बाकी के 150 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टेम्परेरी हैं, लेकिन कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही इसकी असेसमेंट के ऊपर मौजूद नहीं है जिसमें ऑडिटर ने असेस किया हो कि आया ये टेम्परेरी थे भी या नहीं थे। इनको 6 महीने जो लॉ की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक लॉ की, वो ये कहती है कि 6 मंथ से ऊपर जिनका पीरियड हो जाए दे आर वो सब के सब एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ग्रेच्युटी। सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन की डेफिशिएंसी हमारी टीम ने ऑब्जर्व की। Next is no documentation was available in audit file where engagement team had evaluated the objectivity, independence and capability of the management expert. मैनेजमेंट ने जो एक्सपर्ट अपॉइंट किया, यूजुअली हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये मिलता है कि वो बड़ा फेमस है, ये मार्केट में बड़ा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका बड़ा नाम है, लेकिन स्टिल ऑडिटर की एक असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है एज पर आइजा कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। इसी तरह टेस्ट डाटा की रिक्वायरमेंट जो लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एरिया में, नो डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन टेस्ट डाटा, कि ऑडिटर ने ये टेस्ट डाटा को रिव्यू करना होता है। टेस्ट डाटा का मतलब ये है कि वो डाटा जो एक्चुअली को मैनेजमेंट ने दिया क्या वो ठीक था,
कहीं उसमें मैनेजमेंट ने अपनी कोई मैल इंटेंशन तो नहीं इंक्लूड कर दी कि थोड़ा सा एक्चुरियल वैल्यूएशन हम बढ़वाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं। तो ऑडिटर ने इस चीज़ को रिव्यू करना होता है, क्या जिस डेट को डाटा दिया गया उस डेट को इतने ही एम्प्लॉयज थे, क्या उनकी सैलरी इतनी ही थी। Next is property, plant and equipment. A revaluation of PPE was not carried out, even though carrying value materially differed from the fair value. इसमें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट 3 to 5 years है कि 3 to 5 years के बाद रिवैल्यूएशन करवानी ऑब्लिगेटरी कही जाती है कि कहीं कैरिंग वैल्यू मटेरियली डिफर ना कर जाएं। ये उस जगह पे है जहां रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन साथ ही स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट है, अगर चेंजेस ज़्यादा हो रही हैं, तो उन अंडर दो सर्कमस्टांसेस ऑडिटर अगर असेस कर लेता है कि 1 साल बाद ही रिवैल्यूएशन करवा लेनी चाहिए, तो वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। इसके बाद द कंपनी हैड लीज्ड आउट इट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट व्हिच इट अर्न्ड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, बट इट वाज नॉट क्लासिफाइड अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कंपनी इस तरह के स्टांसेस में हमारी टीम ने नोट किए कि प्रॉपर्टी लीज्ड आउट की हुई है, रेंटल इनकम अदर इनकम में आ रही है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई नहीं की गई, बल्कि PPE में भी मौजूद है। फिजिकल वेरिफिकेशन एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, ये भी कॉमन मिस्टेक्स नज़र आ रही होती हैं अमूमी तौर पे स्टॉक काउंट के लिए। अभी रिसेंटली 30 जून को टीमें गई होंगी, तो शायद कुछ चीज़ें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का तो बिल्कुल एक लिमिटेड सी स्पेस होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जियोग्राफिकली काफ़ी फैली हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मे बी फिजिकल एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज़ों की अगर लिस्टिंग टीम लेती जाए तो इस स्टेप को भी बड़ा इजीली परफॉर्म कर सकती है कि आप फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से कुछ चीज़ें उठा ली और वहाँ जाके देख ली, या वहाँ कुछ चीज़ें नोट कर ली और उनको बाद में फिक्स एसेट रजिस्टर में ट्रेस बैक कर लिया। सॉरी, लास्ट पॉइंट है इसमें, एरर्स इन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। रेयर है, लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि एट टाइम्स डेप्रिसिएशन में एरर्स होती हैं। डेप्रिसिएशन पॉलिसी बाज़ जगहों पे रखी होती है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, बट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 anymore. It was noted that the audit file did not contain documentation evidencing as to how the auditor concluded that the useful life of fixed assets, the depreciation rates being used were appropriate. Again, accounting estimates हैं depreciation rates, लेकिन वो unusual नहीं हो सकते। अगर कहीं पे unusual identify हो तो ऑडिटर का काम है कि उनको असेस करे, उनको रिव्यू करे कि क्या सेम इंडस्ट्री में ये सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉलो हो रहे हैं। लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसकी 1.5% या 1% डेप्रिसिएशन रेट आपको नज़र आ जाए, या बिल्डिंग है और उस वहाँ पे आपको 1-2% रेट नज़र आ जाए, जबकि इंडस्ट्री में आपको सिमिलर इंडस्ट्री में आपको रेट जो है वो 10% या 20% नज़र आ रहा हो। सो इस किस्म की चीज़ें, और यहाँ ख़ास तौर पे IFRS फॉर SMEs को मैं हाईलाइट करूँगा लास्ट रो में इसी पर्टिकुलर पॉइंट के, कि सिर्फ ये IFRS या IAS की रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि IFRS फॉर SMEs में भी इस किस्म की, या AFRS फॉर SSCs में भी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट बुलेट अगर मैं पढ़ूँ, विद रिस्पेक्ट टू 2 plots appearing in PPE, it was observed that one of the plot was stated at revalued amount and another was stated at cost, which was not in accordance with clause 2.8 of AFRS for small size entities. ये अनफॉर्चुनेट है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मौजूद हैं वहाँ इस चीज़ की केयर नहीं की जाती शायद, और IFRS फॉर SMEs या AFRS फॉर SSCs की जो रिक्वायरमेंट है उनको इतने अच्छे तरीके से कंप्लाई नहीं किया जा रहा होता। It was observed that depreciation is not being charged on the office building, which is not in accordance with revised AFRS for small-sized entities. Investment property पे हम बात कर चुके हैं, अगेन ये भी AFRS for SSCs की रिक्वायरमेंट है। Company earned income from rent of property, however the related property rented out was not classified in investment property. Next is another very common area जहाँ गलतियाँ या errors हमें नजर आती हैं, deferred tax. Instances were noted where deferred tax asset or liability was not recognized in the financial statements. Moreover, there was no documentation in working paper files to evidence the impact of such non-recognition. यानी अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ऑडिटर असेस कर लेता है एटलीस्ट कि इसका इम्पैक्ट कहीं मटेरियल तो नहीं बन रहा,
लेकिन सिरे से बाज़ जगहों पे हमें नज़र आता है कि डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है। फिर deferred tax asset was recognized though no future forecast was available / documented। यानी deferred tax asset recognize कर लिया गया है लेकिन कोई फ्यूचर फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है जिनसे पता चल सके कि ये रियलाइजेबल भी है या नहीं है। Next is errors in calculation. Deferred tax was computed on land, though it was permanent difference. बाज़ जगहों पे कंप्यूटेशन करते हुए लैंड को दोनों साइड्स पे शामिल कर लिया जाता है, टैक्स बेस में भी और अकाउंटिंग बेस में भी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि दोनों जगहों पे शामिल ना करें क्योंकि इसमें एरर का चांस ज़्यादा है। गलती से अगर एक में मिस हो गई या एक्सेल का फार्मूला गलत निकल गया, हमें बाज़ इस तरह के भी कमेंट्स मिलते हैं कि गलती से एक्सेल का फार्मूला गलत लग गया, लेकिन उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली मटेरियलिटी से अगर ऊपर चला जाए तो ये मिस्टेक या एरर जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ ले जाती है। फिर टैक्स रिटर्न वाज आइदर नॉट अवेलेबल और टैक्स बेस वाज नॉट मैचिंग इन टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल। यानी जहां डेफर टैक्स की कंप्यूटेशन हो रही है वहां पे अकाउंटिंग बेस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रही है और टैक्स बेस के लिए या तो टैक्स रिटर्न से वेरीफाई नहीं किया गया या टैक्स और या फिर टैक्स डेप्रिसिएशन सिरे से मौजूद ही नहीं है। इस तरह के चांसेस भी हैं कि सीधा कंप्यूटेशन हवा से आ रही है। इनकरेक्ट रेट्स डेफर टैक्स फ्यूचर पे एप्लीकेबल होता है, फ्यूचर रेट्स अप्लाई होंगे, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर एंटिटी पे। स्मॉल साइज पे टैक्स रेट कुछ और है और बड़ी कंपनियां जो हैं इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप देख सकते हैं। TR-27 is not considered in bifurcating temporary differences। ICAP का TR मौजूद है जो ये स्पेसिफिक रिक्वायर करता है कि एक्सपोर्ट्स और लोकल सेल्स इनकी बेस पे डेफर टैक्स को अपोर्शन किया जाए और इसमें स्पेसिफिकली वो रिक्वायर करता है कि 3 सालों को कंसिडर करें, यानी एक नहीं मिनिमम 3 सालों की एक्सपोर्ट्स और लोकल सेल्स की जो अपोर्शनमेंट बनती है उसकी एवरेज लें, ना कि सिर्फ 1 साल को कंसिडर करें। मिनिमम 3 साल, 4 साल भी ले सकते हैं, 5 साल भी ले सकते हैं। Instances were noted where no deferred tax implication was considered on temporary differences arising from investment in associate, provision for gratuity, provision for slow moving stock and expected credit loss, allowance on trade debtors। अगेन ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे अकाउंटिंग बेस पे तो असर पड़ रहा है लेकिन टैक्स बेस जो है वो डिफरेंट है। सो जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अराइज करेंगे उनके ऊपर डेफर टैक्स की इम्प्लीकेशन आनी चाहिए मगर मिस की हुई थी। Deferred tax was accounted for in current year, though IAS 8 should have been applied। इसमें भी इस तरह के इंस्टांसेस हमें कुछ रेयर इंस्टांसेस मिले कि डेफर्ड टैक्स जो है वो ऑडिटर ने रियलाइज़ किया कि कभी मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया या ऑडिटर रोटेट होके आया और ऑडिटर ने रियलाइज़ किया कि हमें इनकॉर्पोरेट करवाना चाहिए, करवा दिया लेकिन सारे का सारा इम्पैक्ट करंट ईयर में डाल दिया, वेयर एज IAS 8 शुड हैव बीन अप्लाइड और इसको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना चाहिए था। It was noted that deferred tax liability asset was not recognized in the financial statements। ये specifically मैंने include करवाया कि IFRS for SME वहाँ पे भी deferred tax की requirement है। बाज़ लोग शायद MSE समझ के मिस कर जाते हैं कि MSE है, लार्ज साइज नहीं है, तो MSE में भी ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। बाज़ स्टांसेस हमें मिले, रेयर स्टांसेस थे कि प्रोविजन फॉर टैक्स की सिरे से वर्किंग ही नहीं थी, ना प्रोविजन फॉर टैक्स रिकग्नाइज किया गया था, ना ही कोई रैशनल दी गई थी। बाज़ जगहों पे टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया अंडर सेक्शन 65B एंड 65D फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, लेकिन स्पेसिफिक ये लॉ की प्रोविजन जो हैं 65B एंड D ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर करती हैं कि वो पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल हों तो इन दैट केस आप बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑडिटर ने या तो डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ था या डॉक्यूमेंट किया हुआ था लेकिन प्रैक्टिकली वो टर्म्स कंप्लाई होती नज़र नहीं आ रही थी। जैसे कैपिटल इंजेक्शन की इन दोनों में से एक जगह रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने कैपिटल को इंजेक्ट करना है, तो कैपिटल इंजेक्ट ही नहीं किया हुआ था। It was noted no working for taxation based on taxable profit was available. Further, no working under ACT was available. Instead, minimum tax was computed on turnover। कुछ रेयर इंस्टांसेस इस तरह के भी हमें मिले कि मिनिमम टैक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया और कोई एवेल्यूएशन नहीं की गई, वर्किंग ही मौजूद नहीं थी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं या नहीं हैं। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स की बेस पे अगर कंप्यूटेशन करते तो क्या वो मिनिमम टैक्स से ज़्यादा बन रहा होता, कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बाज़ इंस्टांसेस में मौजूद नहीं थी।
Provision was netted off, but audit procedures were missing on item netted off, despite it was material. बाज़ केसेस में तो प्रोविजन और रिफंड टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेस पे जा रहे होते हैं. बाज़ केसेस में नेटिंग ऑफ की जा रही होती है. जहाँ नेटिंग ऑफ की जा रही होती है वहाँ कुछ स्टांस हमें इस तरह के मिले कि एडवांस इनकम टैक्स डिडक्शन जो है उसको प्रोविजन के अगेंस्ट नेट ऑफ किया गया था, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स के एरिया पे सिरे से काम ही मौजूद नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एडवांस इनकम टैक्स की अमाउंट मटीरियलिटी लेवल से बहुत ऊपर थी. Next is sales tax. No audit evidence was available with regard to sales tax refundable recognized in the financial statements. सेल टैक्स की आमतौर पे एक रिकन्सिलेशन मौजूद होती है, वो भी बाज़ केसेस में हमें नज़र नहीं आई. सेल टैक्स रिफंडेबल की एजिंग मौजूद नहीं है. Sufficient appropriate documentation was not available in working papers to conclude as to how services rendered to the company were not subject to sale tax on services. ये भी एक अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हमें नज़र आ रहा है. पहले शायद इतना नहीं था कि पीआरए के बाद बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पीआरए के एम्बेड में फॉल कर गई हुई हैं, लेकिन सेल्स टैक्स उन चीज़ों पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा. तो हमारे रिव्यूअर इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं. इस चीज़ पे भी अगेन मैं कहूँगा कि आप लोग वापस जाएं तो फोकस करें कि कहीं जो सर्विसेज कंपनी ऑफर कर रही है अगर सेल टैक्स ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, और यूजुअली ये इम्पैक्ट भी मटीरियलिटी से ऊपर ही जा रहा होता है क्योंकि टर्नओवर की बेसिस पे चल रहा होता है. एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड है ऑडिटर की. हो सकता है कि कुछ कंबाइंड चीज़ें चल रही हों, कुछ हो सकता है एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं, कुछ एग्जाम्प्ट ना हो. तो अगेन ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन से पता चलना चाहिए कि जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं उनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगा और जो सेल टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो कितनी अमाउंट की हैं, और एक बाकायदा कंप्लीट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ बता रही है. Withholding tax के हवाले से instances were noted where no audit documentation as to how it was ensured that withholding tax on payments made by the company were duly deducted and timely paid to taxation authorities. इस हवाले से भी बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऑडिटर की असेसमेंट मौजूद नहीं नज़र आती. टैक्स रिफंड्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट्स. टैक्स रिफंड्स आ रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं, पिछले कई सालों से चलते चले आ रहे हैं. ऑडिटर की कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि कितना पुराना है, क्या एजिंग है इसकी. टाइम के साथ साथ असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं. अमूमी तौर पे असेसमेंट ऑर्डर्स जब आ रहे होते हैं तो वहाँ इस चीज़ को की टेक केयर की जा रही होती है कि क्या जितना रिफंड क्लेम किया था क्या उतना ही टैक्स अथॉरिटीज़ ने अलाउ कर दिया या कम कर दिया. अगर कम कर दिया तो उस हिसाब से क्या टैक्स रिफंड्स एडजस्ट भी हुए हैं या नहीं हुए. ग्रुप ऑडिट के हवाले से इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाज नॉट अवेलेबल विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. neither audited nor management financial statements were available for investee company. ग्रुप ऑडिट प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली रिक्वायर करते हैं कि जहां कंपोनेंट मौजूद हो जाए वहाँ ऑडिटर ने ग्रुप के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर खुद परफॉर्म करने हैं. डिस्पाइट द फैक्ट इवन अगर कोई दूसरा ऑडिटर भी अपॉइंट हो जाए, स्टिल ये ऑडिटर की एज पर आइजा 600 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर ने इन कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एक रीजनेबल एश्योरेंस उसके ऊपर लेनी है. Auditor has solely relied on the work of another auditor and not performed audit procedures as per ISA 600 on significant components like joint ventures, joint operations, consider ही नहीं किए गए. Next is GIDC. Instances were noted where the company uses gas in its production process, but no implication of GIDC has been considered in this regard, and no disclosure of provision and or contingency has been provided in the financial statements. इस पे although अब तो कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है GIDC की ऑब्लिगेशन के ऊपर, लेकिन स्टिल हमें बाज़ स्टांसेस इस तरह के मिल रहे हैं जिसमें GIDC की प्रोविजन ही नहीं है, और अगर प्रोविजन है तो डिस्क्लोजर नहीं है, and vice versa. Stock in trade and store space and loose tools another area जहाँ deficiencies काफ़ी हमारी टीम नोट करती है. Audit procedures on valuation were missing as no documentation was available where the auditor had verified the valuation of closing stock as stated in the work done. Value, quantity, rate और फिर value. अमूमी तौर पे ये क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन शीट में वैल्यू आ रही होती है. ऑडिटर आमतौर पे स्टॉक काउंट तो बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, लेकिन वैल्यूएशन के लिए रेट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स आमतौर पे मिसिंग होते हैं, जिस वजह से ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अराइज कर रही होती है.
सो उस रेट के ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए, मूविंग एवरेज रेट है, FIFO है, तो क्या ऑडिटर ने कोई सैंपल सेलेक्ट किया जिसकी बेस पे ये चेक किया कि ये वाकई वेटेड एवरेज जो है फॉलो भी हो रहा है सिस्टम में, FIFO है तो क्या FIFO फॉलो भी हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगी तो एक थर्ड पर्सन इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। Instances were noted where inventory of raw material was more than turnover and pertained to perishable items. Neither aging nor other procedures were performed to review obsolescence. रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो टर्नओवर से भी ज़्यादा है। इस तरह के भी कुछ रेयर स्टांसेस हमारी टीम ने नोट किए। और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो पेरिशेबल इन्वेंट्री है उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है ऑडिटर की कि क्या ये ऑब्सोलेसेंस इसमें हो तो नहीं गई, हो गई है तो कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज करता, प्रोविजन कुछ भी नजर नहीं आ रही। Instances were noted where provision for slow moving stock was not accounted for in the financial statements. Instances were noted where sufficient appropriate audit evidence was not available with respect to NRV testing. Instances were noted where physical count was not performed. यूजुअली फिजिकल काउंट परफॉर्म हुआ होता है, लेकिन कुछ रेयर स्टांसेस हमें इस तरह के भी मिलते हैं कि फिजिकल काउंट ही परफॉर्म नहीं किया। खास तौर पे बाज पर्टिकुलर सिनेरियोज इस तरह के अराइज कर रहे होते हैं कि थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको रिव्यू नहीं किया, वाज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर्स, और वो अमाउंट अगर मटेरियल हो तो अगेन क्वेश्चन होता है कि क्या एक मटेरियल चीज को मिस तो नहीं कर दिया। Litigation and claims instances were noted where sufficient appropriate audit documentation was not available with respect to verification of litigation and claims. Confirmations from legal advisors were missing. और इसी तरह फॉर्म A/annual return had different legal advisor। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि एनुअल रिटर्न शायद रिवाइज नहीं किया और लीगल एडवाइजर जो है उसका नाम कुछ और आ रहा है जबकि कंफर्मेशन फाइल में मौजूद है लेकिन वो किसी दूसरे लीगल एडवाइजर से मौजूद है। ट्रेड डेट्स के हवाले से इंस्टांसेस वर नोटेड वेयर नो ऑडिट एविडेंस वाज अवेलेबल विद रिगार्ड टू रिकवरेबिलिटी ऑफ ट्रेड डेट्स, नाइदर एजिंग नोर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग वाज अप्लाइड, मोरओवर ECL मॉडल वाज आल्सो नॉट अप्लाइड। और इसमें एक और सैंपल वाज नॉट कंप्लीटली वेरीफाइड। ये एक और चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि ट्रेड डेट्स के ऊपर प्राइमरी प्रोसीजर ऑडिटर ने कंफर्मेशन की शक्ल में लगाया, कंफर्मेशंस दी और उनमें से कुछ का जवाब आ गया और कुछ का जवाब नहीं आया। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट्स से 100 कंफर्मेशंस भेजी, 100 रुपीज़ की कंफर्मेशंस भेजी गई, उनमें से 60 रुपीज़ की कंफर्मेशन आ गई, अब रिमेनिंग सैंपल 40 था। आइजा की ये रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर ने अगर पॉपुलेशन में से जो सैंपल सिलेक्ट कर लिया देन ऑडिटर हैज टू परफॉर्म कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द सैंपल सिलेक्टेड। रिमेनिंग 40 के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर करते हुए या तो उनकी सब्सीक्वेंट टेस्टिंग कर लें, अमूमी तौर पे सब्सीक्वेंट टेस्टिंग भी की होती है। रिमेनिंग 40 में से लेट से 20 के ने सब्सीक्वेंटली पे कर दिया टिल ऑडिट रिपोर्ट डेट, और रिमेनिंग जो 20 है वो अनफॉर्चुनेटली हमें स्टांसेस मिलते हैं जिनमें ऑडिटर उनकी वेरिफिकेशन को मिस कर जाता है। उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक इनवाइस टेस्टिंग हो सकती है कि वो जो 20 रह गया जिसकी ना कंफर्मेशन आई है ना सब्सीक्वेंट रिसीट आई है, उस 20 की स्पेसिफिक इनवाइस टेस्टिंग कर लें। देखें एंट्री तो डेटर्स टू सेल ही हो रही होगी, तो उन स्पेसिफिक 20 डेटर्स जिनकी ना कंफर्मेशन है ना सब्सीक्वेंट टेस्टिंग है, अगर आप उनकी स्पेसिफिक इनवाइस टेस्टिंग कर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर सैंपल इन सेल्स एज वेल एज दैट विल हेल्प यू फैसिलिटेट डेटर्स वेरिफिकेशन, क्योंकि वो डेटर्स बैलेंस शीट डेट पे स्टैंड कर रहे हैं। एक अदर वे राउंड ये हो सकता है कि उन रिमेनिंग सैंपल जो रह गया उसकी कंप्लीट मूवमेंट वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर है कि उसमें पूरा क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ। So sample once selected by the auditor that needs to be completely verified, whether through primary procedures or through alternate audit procedures. Contingencies के हवाले से instances were noted where sufficient appropriate audit evidence including confirmation from legal advisor was not available with respect to assessment of contingencies. Long-term loans में non-compliance was made in repayment, but loan was kept as non-current liability, which was contrary to facility offer letter. अमूमी तौर पे फैसिलिटी ऑफर लेटर में ये लिखा होता है कि अगर लोन की रीपेमेंट की नॉन कंप्लायंस की गई
तो लोन जो है वो फौरी तौर पे पेबल हो जाएगा। सो ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू कि लेंडर के साथ कंपनी की क्या टर्म्स एग्री हुई हैं। अगर वहाँ ये बात एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है तो फिर क्लासिफिकेशन के मामले में ऑडिटर को बड़ी केयर करनी पड़ेगी कि क्या आखिरी कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस तो नहीं हुई। ऑल्दो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी हो सकता है हो, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो कहीं गलत क्लासिफाई ना हो जाए। No audit evidence, including confirmation from bank, was available with respect to loan. No documentation in engagement file in order to assess whether the terms/covenant of loan were complied with. Terms and conditions में बाजुकात covenant testing की requirement होती है और उसको auditor review नहीं कर रहा होता कि management ने इनकी compliance को कहाँ देखा है। Long-term subordinated loan instances were noted where loan was not amortized in line with TR 32 despite being classified as long-term loan. Instances were noted where TR 32 non-compliance was occurred. This was financing from associate. Long-term loan from chief executive and directors. Instances were noted where interest-free loan was not recorded at amortized cost. Non-current loan या long-term loan, इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है कि अगर ये नॉन करंट है और इंटरेस्ट फ्री है तो इसने फिर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना है। मिस क्लासिफिकेशन भी इसमें बाजू का हमें नजर आ जाती है कि लोन जो है जहां TR 32 मेंशन करता है कि इट इज रीपेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, वहां फिर ये नॉन करंट लोन नहीं रहेगा, वहां इसको हम इक्विटी में क्लासिफाई करेंगे। तो ये फिर अगेन रेपिटेटिव पॉइंट है लेकिन खास इसलिए शामिल किया गया कि IFRS फॉर SME भी स्पेसिफिक रिक्वायर करते हैं कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग होगी। बात लोग जो MSCs के ऑडिट कर रहे हैं वो शायद इस चीज़ को मिस कर जाते हों। WPPF and WWF instances were noted where no provision for WWF and WWF was recognized in financial statements. अगेन इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑडिटर को एवेल्यूएट करना है कि क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट मटेरियल तो नहीं है, और अगर मटेरियल है तो क्या ऑडिटर ने इसका इम्पैक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेना है या नहीं लेना। Exchange gain loss instances were noted where the company has not translated its foreign currency balances of trade debts and advances from customers in line with IS 21. It was noted that the company has not translated its foreign currency amounts of trade debts and advances from customers. IFRS for SMEs, repetitive point, only receipts for the year were translated, resulting in exchange gain recognized, but as at balance जो हैं उनकी translation भी as per IAS और as per IFRS for SME required है। Revenue में common हमें नजर आता है कि cut off testing नहीं की हुई, सेल टैक्स की रिकन्सिलिएशन मिसिंग है, अगर मौजूद है तो बाज़ चांसेस ऐसे हैं कि वो रिकनसाइल ही नहीं कर रहा, फ़र्क आ रहा है लास्ट मोमेंट पे कुछ एंट्रीज डल गई जिनको शायद ऑडिटर अपडेट नहीं कर पाया। इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज रिकग्नाइज्ड ऑन रिसीट बेसिस इंस्टेड ऑफ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 18.5 ऑफ AFRS फॉर SSC, यानी AFRS फॉर SSC भी रिसीट बेसिस नहीं बल्कि टाइम प्रोपोर्शन बेसिस की बात करते हैं। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, यहाँ पे भी हमें कुछ चांसेस मिले वेयर द सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन वाज मिसस्टेटेड, करेक्ट तरीके से अकाउंटिंग नहीं की हुई, इस टाइप की एरर्स। ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग के हवाले से मैं शेयर करूंगा, ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो टीम आइडेंटिफाई कर रही होती है। ये टेस्टिंग की जा रही होती है बेस्ड ऑन सब्सीक्वेंट बैंक स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई कि क्या लेट्स से ईयर एंड जून है, 30 जून है, तो सब्सीक्वेंट पीरियड जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों की या अप टिल द डेट, मैं कहता हूँ ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट की ऑडिट बैंक स्टेटमेंट ले लेता है ऑडिटर, और वहाँ पे कुछ पेमेंट्स को टेस्ट बेसिस पे स्कैन बैक कर लेता है कि ये रिलेट करती हैं किस एक्सपेंस से, और वो एक्सपेंस क्या जून या मई से रिलेट करता था, और अगर मई और जून से रिलेट करता था तो क्या वो मई और जून में ही बुक किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जुलाई में बुक कर लिया, लायबिलिटी ओमिट तो नहीं हो गई। सो ये एक टेस्ट है जो लायबिलिटी की ओमिटिंग को टेस्ट कर रहा होता है। फिर न्यू स्टैंडर्ड्स के हवाले से IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9, इसमें रिजल्टिंग चेंजेस, बहुत सारे स्टांसेस हमें नजर आए कि चेंजेस के साथ लोगों ने अपने आप को लेट अपडेट किया। डिस्काउंट्स अगर दे रहे हैं, बाज़ औक़ात हमारे रिव्यूअर्स ने नोट किया कि बाकायदा कंपनीज ने कैंपेन चलाई हुई हैं, प्रोडक्ट बड़ी कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट है, फेसबुक पेज और फलां जगह पे ढेरों ढेर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जबकि कंपनी की बुक्स में कोई डिस्काउंट्स आ ही नहीं रही हैं और उसकी कोई इम्प्लीकेशन कंसिडर ही नहीं की गई।
IFAS 2 की बात करूंगा इजारा में, कि इजारा की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि IFAS 2 ये कहता है कि रेंटल्स जो हैं वो P&L में बुक होंगे, लेकिन ये अब कम हो गया है, लेकिन स्टिल बाज़ लोगों को नज़र आता है कि फाइनेंस लीज के तौर पे रिकॉर्ड किया होता है। जब प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग पे जाने से पहले अब मेरा ख्याल है हम बस 5 मिनट तकरीबन सिनेरियोज आप सबको डिसेमिनेट हो गए, आप इसको क्विकली रीड थ्रू कर लें, फिर मैं इन पे आपसे आपका व्यू लूंगा कि क्या होना चाहिए था। मैं बल्कि रीड कर देता हूँ, सिनेरियो 1 पहले रीड करूंगा। बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, इसमें जुनेद आप मुझे थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं, वर्ड फाइल भी मैंने शेयर की थी, अगर वो आप ओपन कर लें ताकि डिस्प्ले भी हो जाए। ये जब तक डिस्प्ले करते हैं मैं रीड करता हूँ, आप सब भी रीड कर रहे हैं। सिनेरियो 1 है, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, इन एब्सेंस ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स वी वर अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence as to existence and valuation of trade debt amounting to rupees 427 million appearing in note 13 of the financial statements and any movement therein during the year, and were unable to determine relevant adjustments that might be required to be incorporated in the financial statements for the year ended June 30, 2018. और B point में कह रहा है the company does not recognize deferred taxation in the financial statements, which is non-compliance of the approved accounting and reporting standards as applicable in Pakistan. These standards require the recognition of asset liability in respect of deductible/taxable temporary differences. Consequently, we were unable to determine the amount in respect of deferred tax asset/liability of the company as at June 30, 2018. Scenario 1 निकालिएगा प्लीज। इसमें ब्रीफ डिटेल्स भी आपके पास जो हैंडआउट्स दिए हैं उसमें आ रही होगी कि रेवेन्यू कंपनी का 636 मिलियन है, टोटल एसेट्स 563 मिलियन है, मटेरियलिटी 2.89 मिलियन है। तो एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर, आप माइक अगर पहुंचा सकें इन दोस्तों तक जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। एक मिनट सबको पढ़ लेने दें। जुनेद आप डिस्प्ले कर लें, उसके बाद मैं इनको लेता हूँ। 1 मिनट बाकियों को भी पढ़ लेने दें। अस्सलाम वालेकुम सर, डिस्प्ले में सिनेरियो 3 आ रहा है, नॉट द सिनेरियो 1। काइंडली चेंज किया। मैंने रिक्वेस्ट की है, इनसे रिक्वेस्ट की है, ये चेंज कर रहे हैं। थैंक्स। जी सिनेरियो 1 आप सबको डिस्प्ले हो गया, यही मैंने रीड आउट भी किया और आपको हैंडआउट्स भी मिले हैं। तो जो साथी बताना चाहें जी प्लीज। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है कि ठीक है, ये दूसरे साथी को भी पूछ लें। ठीक है, आपका वैसे आंसर ठीक है कि परवेजिवनेस को कंसिडर नहीं किया गया। आइजा 705 का पैरा 5A जो है वो स्पेसिफिकली परवेजिवनेस को जहां डिफाइन करता है, आमतौर पे पब्लिक में या स्टूडेंट्स में ये समझा जाता है कि इसका बहुत सारे अकाउंट हेड्स में असर होगा। ठीक है, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन जहां डेफिनेशन दे रहा है स्टैंडर्ड में, वहां से मैं 705 आइजा 705 का पैरा 5A
उसमें आगे फर्दर रोमन 2 रीड करूंगा. Pervasive effect on the financial statements are those that in the auditor's judgment, if so confined, represent or could represent a substantial portion of the financial statements. आप हमारे सिनेरियो में देखिए कि ऑडिटर ने ट्रेड डेट्स के ऊपर क्वालिफाई किया है 427 मिलियन और हमारे टोटल एसेट्स जो हमें नजर आ रहे हैं वो 563 मिलियन है. सो इफेक्टिवली 76% ऑफ बैलेंस शीट फुटिंग. इसको आप सब्सटेंशियल कैसे नहीं कह सकते? शायद कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो जिससे ऑडिटर कुछ बताना चाहे तो और बात है, अदरवाइज परवेजिवनेस पे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, परवेजिवनेस तो ठीक है लेकिन एडवर्स नहीं होना चाहिए, इसको भी डिस्क्लेम करना चाहिए क्योंकि एविडेंस नहीं मिल रहा. जी ठीक है. स्टेटमेंट नहीं है ये, वो है स्कोप लिमिटेशन. स्कोप लिमिटेशन है, बिल्कुल जी, ठीक है. तो ये एडवर्स नहीं होगा, इस पे डिस्क्लेमर होगा. हाँ ठीक जी, है, disclaimer होगा. इम्पैक्ट पे बात करना चाह रहा था मैं, शायद वर्ड्स थोड़ा आगे पीछे हो गए. थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन. जी नेक्स्ट सिनेरियो सामने लाइएगा. सिनेरियो 2. देखें ये एरर मैं बता दूं कि ऑब्जर्व हुई और बहुत सारे लोग जो हैं परवेजिवनेस को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते, तो इसलिए मैंने खास पॉइंट आउट किया. सर स्टिल सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया. अच्छा, इसमें सिनेरियो 2 में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा सिनेरियो, मल्टीपल क्वालिफिकेशंस हैं और इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है कि कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो अगेन इन दी एंड हमारा कंक्लूजन जो है वो डिस्क्लेमर वाली साइड पे ही जाएगा. मल्टीपल क्वालिफिकेशंस हैं बट दोज आर क्वालिफिकेशंस. कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो आग के जलने का इवेंट को शायद बात करेंगी. सो सिनेरियो 3 पे ही आ जाएं, आगे आ जाएं. इस पे हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे ताकि कुछ हिस्सा और रहता है प्रेजेंटेशन का, हम टाइम से रन आउट ना कर जाएं. जी ये सिनेरियो 3 है. एम्फेसिस ऑफ द मैटर पैराग्राफ दिया हुआ है और रिलेटेड नोट्स दिए हुए हैं. इनको अगर क्विक रीड दे सकें, मैं भी रीड दे देता हूँ. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 3.4 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which indicate that full year depreciation is charged on additions during the year, whereas no depreciation is charged on assets disposed of during the year. The generally accepted treatment for depreciation as stated in the AFRS for MSC is depreciation is to be charged from the month when the asset is put to use, while no depreciation is charged in the month in which assets are disposed of. Has not been adopted as it is impracticable for company. Our opinion is not qualified with regard to this matter. Further, we draw attention to note 5.1 of financial statements, which indicate that the company has 3 plots measuring total area 71 canal approximately, out of which revaluation of land covering 33 canal was carried out by the independent valuer on April 6, 2012. That resulted in revaluation surplus, whereas whole class of asset has not been revalued as stated in AFRS. When an item of PPE is revalued, the entire class of PPE to which the asset belongs shall be revalued. Our opinion is not qualified with regard to this matter. Concerned notes भी हैं, आप इसको भी स्किम रीड कर दें और if anyone जो शेयर करना चाहे 1 मिनट और दे दें आप, someone else किसी और को भी. Thank you. ये सबसे आगे आ जाए. जो सेकंड पार्ट है विद रिगार्ड्स टू द रिवैल्यूएशन, उसमें क्योंकि तमाम क्लास ऑफ एसेट्स की रिवैल्यूएशन होनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की, तो वो क्वालिफिकेशन बनेगा, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं बनेगा. और जो फर्स्ट पार्ट है वो एम्फेसिस ऑफ मैटर रह सकता है, लेकिन उस पर देखना पड़ेगा कि आया इट्स परवेसिव और नॉट. सही है जो है वो ठीक है. कोई और साथी? हाँ देंगे. सर एक तो वही चीज़ के एम्फेसिस कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है क्वालिफिकेशन के लिए. इसमें ऑब्वियसली मैटर को मज़ीद एलैबोरेट करना चाहिए कि क्यों ये समझते हैं कि ये एक मटेरियल इफेक्ट नहीं दे रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. एम्फेसिस के हद तक इन्होंने क्यों रखा है इस पर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. दोनों मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने मंथ ऑफ परचेज वाली जो इसमें बात लिखी है, ये एज इट इज़ कोटेड नहीं है स्टैंडर्ड्स में से. वो रीजनेबल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि जो मैं शेयर कर लेता हूँ मंथ के हवाले से मेरे ख्याल से. लेकिन दोनों साथियों का जो सिचुएशन में आंसर है कि ये एम्फेसिस ऑफ द मैटर कैसे बन गए, इन दोनों को एवेल्युएट करना चाहिए था. आइजा 706 पैरा 7A एम्फेसिस ऑफ द मैटर की डेफिनेशन देता है
a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements, that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users' understanding of financial statements. यानी यहाँ जो बात आप दोनों साथियों ने कही वो कॉरोबोरेट हो रही है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसको अवेल्युएट करता कि क्या इसका इम्पैक्ट मटेरियल तो नहीं, और अगर मटेरियल है तो फिर मॉडिफिकेशन की तरफ जाता, ना कि इस पे एम्फेसाइज करता। अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी जिससे एक थर्ड पर्सन जो रिव्यू कर रहा है उससे वो उसी डिसीजन पे पहुंच सकता है जो ऑडिटर ने अराइव एट किया है। जी 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 सर सामने वालेकुम अस्सलाम। सर एम्फसाइज तो हम करेंगे जो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, एप्रोप्रिएटली हुआ है। डिपार्चर फ्रॉम आईएसए को तो हम एम्फसाइज नहीं करेंगे, उसको तो हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल है अब यही मटेरियल है या नहीं है, यही मेरा कंसर्न है कि ऑडिटर ने अगेन लेकिन इस चीज़ को एवेल्युएट करना है कि क्या ये नॉन कंप्लायंस जो है ये सिग्निफिकेंट है, क्या मटेरियल है या नहीं है। अपेरेंटली जो हमने स्टांस शेयर किया ये दोनों ही शायद मटेरियलिटी लेवल से काफ़ी ऊपर थे। थैंक यू। नेक्स्ट जी मैं वापस आऊँगा प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग के पॉइंट्स की तरफ। आप प्लीज़ जुनैद प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आ जाए। जी प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग से एसोसिएटेड गोइंग कंसर्न के ऊपर in instances were noted where sufficient appropriate audit documentation was not available to conclude the appropriateness of management's use of going concern assumption. गोइंग कंसर्न देखें कुछ जगहों पे तो बड़ा क्लियर फाइनेंशियल से ही नज़र आ जाता है, शायद वहाँ पे एक चेकलिस्ट भी काम कर जाए जहाँ कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन जहाँ पे ऐसे स्टांसेस फाइनेंशियल से ही नज़र आ रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस है, कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हो गए हैं, 6 महीने चले हैं, अगले 6 महीने बंद हैं और करंट रेशियो में मिसमैच है, तो वहाँ फिर एडिक्वेट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं। और फर्दर जहाँ मिटिगेटिंग फैक्टर्स जब दिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं। सर्कमस्टांसेस हमने नोट किए जहाँ फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो हैं वो मौजूद तो हैं लेकिन ऑडिटर ने बस फ्यूचर प्रोजेक्शंस लगा दी हैं, उनके ऊपर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं किए। लेट्स से करंट ईयर की सेल 50 मिलियन है तो अगले साल वो 250 मिलियन उठ के कैसे हो जाएगी, ऑडिटर ने असेस नहीं किया हुआ। इंगेजमेंट लेटर में कुछ स्टांसेस हमारी टीम नोट कर रही है, ये 2 कॉमन स्टांसेस हैं कि इंगेजमेंट लेटर जो है उसमें फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाज नॉट इंक्लूडेड, रिक्वायरमेंट्स आते इन्होंने आइजा की मेंशन कर दी है। इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, बहुत सारे स्टांसेस थे जहाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं किया था, कुछ स्टांसेस ऐसे भी थे जहाँ गलत डॉक्यूमेंट किया हुआ था, यानी IFRS लगा हुआ है तो IFRS फॉर SME लिख दिया है, IFRS फॉर SME एंड वाइस वर्सा यू कैन थिंक। Fraud risk assessment, it was noted that EP did not consider any significant fraud risk due to revenue recognition and management override of control. ये revenue के ऊपर तो ये inherent limitation inherent समझा जाता है कि ये इसके ऊपर risk जो है fraud risk वो high ही होगा। जर्नल एंट्री टेस्टिंग, ये भी टीम पिछले कुछ अर्से से बड़ा कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व कर रही है कि JE टेस्टिंग नहीं की हुई और अगर की हुई है तो वो कंप्लीट नहीं है। इस पे मैं थोड़ा सा हो सकता है आपके 1-2 मिनट ले लूँ कि इसमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन का कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है कि जो कंपनी ने JVs डाले उसका शायद GL डंप ऑडिटर ले रहा होता है और उसमें एवेल्युएट कर रहा होता है सारी की सारी JVs को कि क्या पॉपुलेशन थी JVs की और बाकी एसोसिएटेड जो वाउचर्स डले हुए हैं उनकी, उनमें से फिर JVs जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक मंथ एंड या ईयर एंड के नहीं उठा रहा होगा, उनको रिव्यू कर रहा होगा कि इनकी ऑथराइजेशन का क्या मैकेनिज्म है, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ मौजूद हैं, कौन प्रिपेयर था, कौन रिव्यूअर था, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ फॉलो भी हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या सिस्टम में बैक डेट एंट्रीज हो रही हैं, क्या मैनेजमेंट के इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं कि बैक डेट एंट्रीज को रोका जा सकता है, क्या कोई अनयूजुअल टाइमिंग्स पे तो नहीं एंट्री हो रही, लेट से रात के 11 बजे कोई एंट्री हो रही हो, GL डंप से ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्या पब्लिक हॉलीडेज में तो नहीं कोई एंट्रीज हो रही, क्या आउट ऑफ ट्रायल एंट्रीज तो नहीं हो रही। मसलन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं उस टाइम पे कुछ एंट्रीज सिर्फ एक्सेल शीट पे तो नहीं की जा रही, क्या वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट भी हो रही हैं,
क्या सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड ऐसा तो नहीं हो रहा, या सब्सिक्वेंट टू एवरी मंथ एंड कुछ एंट्रीज जेवी की शक्ल में की जा रही हों और जैसे ही यकम तारीख आए उनको रिवर्स कर दिया जाए? इसी तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी इस हवाले से कहा जाता है कि ज़्यादा केयर डिमांड करती हैं। क्या सिस्टम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देता कि जो ऑटोमेटेड वाउचर नंबर है वो एडिट किया जा सके? ट्रांजैक्शंस के लॉग्स सिस्टम में मौजूद हैं। सो ये कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो जी सही नेचर ऑफ द एंट्री क्या है? रूटीन एक एंट्री हो रही है वो ईयर एंड की, द सिग्निफिकेंस उसकी क्या है? सर इसीलिए इन जनरल एंट्री बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। इसीलिए मैंने वो स्टार्ट में कहा कि शुरू में ही जीएल डंप ले लें और उसकी बेस पे ऑडिटर आइडेंटिफाई करे कि क्या अनयूजुअल टाइमिंग्स पे तो नहीं ये एंट्रियां हो रही, अनयूजुअल डेट्स पे, पब्लिक हॉलीडेज पे, संडेज को रात 11 बजे इस टाइप की एंट्रीज तो नहीं हो रही। The next is a management representation letter. Instances were noted where representation letter was not signed at all. Sign ही नहीं थे. Instances were noted where the audit report was signed before the representation letter was signed by the management. ISA specifically require करता है कि date जो है वो as close as possible to audit report होनी चाहिए, but should not be after the audit report date. Instances were noted where the date of the written representation was very remote from the बाज़ cases हमें ऐसे मिले जहाँ बहुत फर्क था, 3 महीने का फर्क है, 6 महीने का फर्क है. Instances were noted where the management representation letter did not contain all the representations in accordance with applicable ISA. So the next is presentation and disclosure. Date of authorization disclose नहीं की हुई, accounting policies disclose नहीं की हुई, stamping of financial statements में instances were noted where financial statements stamped by the auditor. ये ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, इस पे ICAP की एक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जिसके मुताबिक अगर आप स्टैंप भी करें तो उसमें फिर ये बात लिखें ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, क्योंकि इसमें यूजुअली ऑडिटर का ये स्टांस होता है कि कहीं अगर मैनेजमेंट ने या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक में सबमिट करवा रहे हैं तो उसको चेंज ना कर लें. तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अगर स्टैंप करना ही है तो वहाँ ये बात लिखी जाए कि ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस हम स्टैंप कर रहे हैं. अदरवाइज स्टैंपिंग से शायद एक ये व्यू आता है कि शायद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की नहीं है बल्कि दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर. PPE में instances note किए where there was no land or building appearing in fixed asset disclosure of the company despite company having offices in different cities. FSV was not disclosed. Useful life or depreciation rates were not disclosed. Investment in associate में summarized financial information of associate was not disclosed. Principal place was not disclosed. Incorrect framework. जो स्टार्ट में नोट 1 या 2 जहां आ रहा होता है वहां गलत फ्रेमवर्क डिस्क्लोज कर दिया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर वाले फ्रेमवर्क में बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल MSC अगर कंपनी है तो वो IFRS पे फाइनेंशियल्स बना सकती है, लेकिन एक लार्ज साइज कंपनी MSC के स्टैंडर्ड्स नहीं लगा सकती. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर्स में भी एरर्स काफ़ी सारे नजर आए. अमूमी इसमें कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर नहीं दिया होता, और फाइनेंशियल एसेट्स में कुछ आइटम्स हैं जो इंक्लूड कर दी जाती हैं विच आर नॉट फाइनेंशियल एसेट्स, प्रीपेमेंट्स फॉर एग्जांपल. और इसी तरह फाइनेंशियल लायबिलिटीज में कुछ चीज़ें इंक्लूड बाज़ औक़ात कर दी जाती हैं विच आर नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटीज. सो ये छोटी छोटी डिस्क्लोजर, ये अगेन AFRS फॉर SSC की एक रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर इसी तरह से नहीं था. AFRS फॉर SSC भी इवन रिक्वायर करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर. Related party में terms of transactions with related parties were not disclosed. Post-employment benefit to directors and executives not disclosed. Percentage of shareholding not disclosed. Again, disclosure से associated nature of related party relationship, policy for transaction with related party not disclosed. Next is checklist. Actually checklist का area जो है वो पिछले कुछ अरसे से ICAP ने हमारी टीम ने इस चीज़ को अपडेट भी कर दिया है. ICAP की वेब पे मौजूद है. बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड चेकलिस्ट है जिसे हमारी टीम फिल कर रही होती है. तो वो लोग जो ऑडिट फर्म्स में साथ ही काम कर रहे हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वो खुद भी इसको फिलअप अगर करवाना शुरू कर दें या करना शुरू कर दें, ताकि वो जो क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यूअर फॉलो कर रहा है उसको फर्म भी कंप्लाई करना शुरू कर दे, ताकि दोनों में गैप ना आए. ये मेरी एक रिकमेंडेशन और सजेशन है.
बाकी ये ऑलरेडी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से क्योंकि निकाली हुई है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ही ब्रीफ किया, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी अभी पहले ऑडिट वर्किंग पेपर और ISQC को मेरे साथी डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर मैं पॉइंट आउट करूंगा जिन पे ऑब्जर्वेशन हमने शायद डिस्कस नहीं की। प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंस की हमने बात कर ली, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की हमने बात कर ली, कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर को भी हमने डिस्कस कर ली है। एंगेजमेंट टीम रोटेशन की हमने बात कर ली है कि 5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और ऑडिटर सेम ऑडिटर कंटिन्यू कर रहा है, रोटेशन नहीं हो रही। मटीरियलिटी के एस्पेक्ट में मैं कुछ बात करूंगा कि मटीरियलिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है, वो खुद डिसाइड करेगा, लेकिन उस प्रोफेशनल जजमेंट की कोई बेस होनी चाहिए और उसकी रैशनल ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट करनी है। फॉर इंस्टेंस कंपनी के यूजर्स जो हैं वो किस बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये वो पॉइंट होगा जो डिसाइड करेगा बेस फॉर मटीरियलिटी। कंपनी के यूजर्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देख के डिसीजन करते हैं तो मटीरियलिटी जो है वो रेवेन्यू बेस्ड कंप्यूट नहीं होनी चाहिए। ये ऑडिटर ने असेस करना है और अपने साथ डॉक्यूमेंट करना है। यूजुअली ये डॉक्यूमेंट हमें मिस नज़र आती है, जहाँ प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है वहाँ डेफिनेटली वो रेवेन्यू पे भी जा सकता है और टोटल एसेट्स को भी बेस बना सकता है। सो रैशनल और बाज़ जगहों पे हमें परफॉर्मेंस मटीरियलिटी यानी प्लानिंग अगर मटीरियलिटी कंप्यूट की हुई है तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कंप्यूट नहीं की हुई, ये इस तरह के भी स्टांसेस हैं। There may be other instances also for him as looking at the market and otherwise. So Sir, how could we be मैं- specific on the profitability or on based on the user? जी जी How could user be, how can सर, an ये auditor- मैं शेयर करता हूँ कि ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करते हुए डिस्कशन कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकता है कि भाई आप किस बेस पर डिसीजन ले रहे हैं। यूजुअली that is with the management, but the जी, user जब आप कह रहे हैं ना, जी, the user, the third party, the shareholder, यूजुअली the मैं other शेयर in करता the हूँ सर कि market. शेयर होल्डर भी तो प्रॉफिटेबिलिटी को शायद देख रहा होता है जब वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है। सो अमूमी यही समझा जाता है कि प्रॉफिट्स को ही देखा जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स जहां अनयूजुअल हों वहां शायद ऑडिटर प्रॉफिटेबिलिटी को बेस नहीं बनाएगा, वरना अदरवाइज अमूमी यही कंसिडर किया जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी की क्या परसेंटेज लगाएगा। Ordinarily आपकी बात सही है, but you look at generally के blue chip पे देख रहे हैं, otherwise ये लेकिन बहुत सारी लोकेशन क्या है, वो साइट का है, वो कंपनी का है, in which area, which area continent it is operating, South Asia किधर है? There's so many other things. जी जी बिल्कुल depending on the बिल्कुल आप user. सही कह रहे हैं। वो अगेन ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है, ये ऑडिटर ही करेगा, लेकिन उसमें फिर वो डॉक्यूमेंट करेगा कि मैंने इस चीज को अगर लेके चलूं तो उसकी क्या वजह बनी है। अगेन ये आइजा 315 की चीजें हैं, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लानिंग पे भी और फाइनलाइजेशन स्टेज पे भी। ओपनिंग बैलेंसेस पे मैं ज़रूर कुछ शेयर करूंगा कि प्रीडिसेसर ऑडिटर के हमें स्टांसेस मिले कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर ही नहीं लिखा, कॉरस्पॉन्डेंस ही नहीं की, कॉरस्पॉन्डेंस तो की लेकिन फिर फ़ी के इशू आ रहे हैं कि पिछले ऑडिटर की फ़ी क्लियर नहीं हुई और एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली गई है। ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए गए। फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट है, आइजा स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंस का आइजा स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर किया जाए। कुछ लोग ये आर्ग्यू कर देते हैं कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को हमने लेटर लिखा और लेकिन उसने समहाउ हमें फैसिलिटेट नहीं किया, बट स्टिल हमारी टीम इसको काउंटर आर्ग्यू इस तरीके से करती है कि नाउ यू आर द ऑडिटर और जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने आपको अवेलेबल करके दिए हैं। सो ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं फर्स्ट ईयर में दोज आर सब्जेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर्स, और इसकी अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ी क्रिटिकल है। ITGC, कंट्रोल टेस्टिंग, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, अगेन ये आइजा बेस्ड चीज़ें। ऑडिट सैम्पलिंग पे हमने वो ट्रेड डेट्स पे बात की कि सैंपल जितना सिलेक्ट होगा वो कंप्लीट ऑडिटर ने वेरीफाई करना है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, इसके हवाले से मैं इतना कहूँगा कि कंफर्मेशंस जो हैं वो कंट्रोल ऑडिटर का होना चाहिए। कंट्रोल तभी इस्टेब्लिश होगा जब उसकी सुपरविजन में डिस्पैच हो रहा हो। ऑडिट एविडेंस टीम रिक्वेस्ट करती है कि बताएं कि कहाँ ऑडिटर ने इस ऑडिट एविडेंस को रिकॉर्ड किया है।
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हमने डेप्रिसिएशन की बात की, ऑडिटर्स एक्सपर्ट पास केसेस में ग्रेचुटी की वैल्यूएशन हमने देखा है कि ऑडिटर जो है जहां मुतमईन नहीं होता, जहां उसे फील होता है कि नहीं ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू आ रही है, तो ऑडिटर अपना एक्सपर्ट भी अपॉइंट करता है। इसी तरह रीवैल्यूएशन के केसेस में मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो अगेन टेस्ट डाटा की हम बात कर चुके हैं। फिजिकल इन्वेंट्री की भी हमने बात की कि फिजिकल काउंट की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या कंप्लाई हो रही हैं। अगर ईयर एंड पे फिजिकल काउंट हो रहा है तो, या किसी और डेट पे हो रहा है, तो क्या कोई रिकन्सिलेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे हैं ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स। लेट से 2 जुलाई या 3 जुलाई को हो रहा है, तो क्या कोई पहले 3 दिनों पे कोई ऑडिट प्रोसीजर्स हैं तो मूव बैक टू इन्वेंट्री पोजीशन एज एट 30 जून। थर्ड पार्टी पे अगर कोई स्टॉक है तो उसके ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स किए गए हैं। लिटिगेशन मिनट्स, गोइंग कंसर्न की भी हम बात कर चुके हैं। रिलेटेड पार्टीज के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स, जेई टेस्टिंग की हमने बात कर ली। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगेन ये भी एक एरिया है जो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करके एंड पे एवेल्युएट करना है कि क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मिलकर मटेरियल तो नहीं हो जाती, और अगर मटेरियल हो जाती हैं तो ऑडिटर की असेसमेंट में क्या इसके ऊपर ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मामला हैं जिनमें दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ऑडिटर ने उसको कहाँ असेस किया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की है। EQCR कंसल्टेशन सुपरविजन बात कर चुके हैं। ISQC 1 में ऑडिट रिपोर्ट को भी हमने टेकअप कर लिया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अगेन बाज़ लोग इसके हवाले से क्यूरी करते हैं कि भाई क्या हमें सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगाना चाहिए, क्या इनवॉइसेस लगानी चाहिए, क्या परचेज अगर किया तो क्या परचेज इनवॉइस लगाना, या सेल किया तो क्या सेल इनवॉइस लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा या हमारी डिपार्टमेंट का स्टांस ये होता है कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो के एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए, एक थर्ड पर्सन ऑफ सेम क्वालिफिकेशन उस सोर्स डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाए। सिर्फ वर्क डन डॉक्यूमेंट कर देना काफ़ी नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर सेल वाउचर्स देखें तो उन सेल वाउचर्स का रेफरेंस नंबर आ रहा हो, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, डेट किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई वो डॉक्यूमेंट किया हो, और वर्क डन के लेजेंड्स डिफाइन हो, पता अमाउंट पता चल रही हो, ताकि जो सैंपल सिलेक्ट किया है। बाज़ रेयर जगहों पे हमने इस तरीके से देखा कि लिखा हुआ है कि वी हैव रिव्यूड 20 ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स अमाउंटिंग टू दिस मच, बट अगेन वो एक थर्ड पर्सन उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। Distinguishing characteristics of transaction tested rather. ग्रुप ऑडिट पे भी हम बात कर चुके हैं। एंड पे मैं कहूँगा कि बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रेगुलेशंस, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड, तुंदिए वादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज वर्क हार्ड एंड देयर इज नहीं सर, ये कह लीजिए कि लोगों को मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए कि शायद रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। देखें एक दफ़ा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, ये जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन ये रख रहा हूँ कि यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं ये जाके अपनी अपनी फर्म्स में वैल्यू ऐड करेंगे। तो उसी को मैंने यहाँ क्लोज रिमार्क्स में शेयर किया है कि अगेन देयर इज़ नो लिमिट टू स्काइज। Thank you very much. If there are any question and answers. सर क्वेश्चन है कि हम डेटर्स की वेरिफिकेशन करते हैं तो नॉर्मली हम कंफर्मेशन सेंड करते हैं, तो उसमें सिर्फ जो एग्जिस्टेंस की असर्शन होती है वो टेस्ट होती है। क्या इसके अलावा जो बाकी असर्शंस हैं, राइट्स की है, कंप्लीटनेस की है, वो भी टेस्ट करनी पड़ेगी, या जो कंफर्मेशन है वो सफिशिएंट होगी? ये ऑडिटर की जजमेंट कॉल है, वो खुद एवेल्युएट करेगा सर्कमस्टांसेस को देख के कि मेरा दोज चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर कितना रिस्क है, मैं उनके ऊपर कितना रिलाई कर सकता हूँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट मेरा कैसा है। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट मेरा काफ़ी है, अच्छा है, तो फिर वो डिसाइड कर सकता है, हो सकता है कुछ कन्फर्मेशंस पे रिलाई कर ले, हो सकता है कुछ कन्फर्मेशंस आने के बावजूद उनके ऊपर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ले।
और बहुत सारे ऑडिटर्स को मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कंफर्मेशन भेज के दे डोंट वेट, वो दे परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, लेटर ऑन कंफर्मेशन भी आ जाए तो उसको भी फाइल कर लेते हैं. सो ये ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है कि उसने रिलाई करना है या नहीं करना. अगर रिलाई करना है तो किस हद तक करना है, किस पे करना है और किस पे नहीं करना, सैंपल अगेन उसकी कॉल है. ठीक है. और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि ISQC1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जब ICAP के साथ लिस्ट शेयर करते हैं क्लाइंट्स की, तो उसमें ICAP की तरफ से डेफिशिएंसी का लेटर आ जाता है. उसमें कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ICAP आइडेंटिफाई करता है कि जो हम अपनी लिस्ट में नहीं दे रहे होते. वो नॉर्मली कंपनीज वो होती हैं कि जिनकी हमने कॉन्सेंट्स नहीं दी होती, लेकिन कंपनीज ने हमारा नाम फॉर्म 29 में दे दिया होता है. उस केस में ऑडिट फर्म के ऊपर क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसकी कंसेंट के बगैर उन्होंने नाम दे दिया है फॉर्म 29 में, तो स्टिल वो डेफिशिएंसी कंसिडर होगी? नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी ठीक है. देखें, इसमें फर्म अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दे देती है. हमने देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है कि जब हमारी साइड से इस तरह का लेटर आता है तो जवाब में 10-15 नाम, इवन बाद केसेस में इससे ज़्यादा भी नाम लिस्ट में ऐड हो जाते हैं. तो हैविंग सेड दैट, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो फर्म कहती है कि नहीं, इनका हमने ऑडिट नहीं किया, सिर्फ कंसेंट दी है, तो वी टेक इट एज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्म, और उसके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ नहीं कर रहे होते. जी, कोई और साथी? माइक. जी, फैसलाबाद से जी खान मोहम्मद. ये मेरे 3 क्वेश्चन है. पहला ये है कि प्लाट का आपने फरमाया कि कुछ की वैल्यूएशन हो गई, कुछ की नहीं हुई. अब अगर ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर्स की क्या ऑब्लिगेशन है? सर रिपीट कीजिएगा, वैल्यूएशन किसकी होगी? यानी प्लाट की वैल्यूएशन, एक प्लाट की वैल्यूएशन करवा ली, दूसरा प्लाट जो है वो क्योंकि कंपनी को इतनी लोन रिक्वायर्ड था, एक प्लाट की वैल्यूएशन करवा के उसका काम चल गया, दूसरे को उसने कराई नहीं है. अब उसमें ऑडिटर्स की क्या ऑब्लिगेशन है? मैं शेयर करता हूँ सर. देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रही है कंपनी, और ऑडिटर ने असेस करना है कि क्या एक क्लास जहाँ रीवैल्यू हो वहाँ फिर सिमिलर क्लास के एसेट का रीवैल्यू होने की रिक्वायरमेंट मौजूद है. सो अगर नहीं कर रहे तो ऑडिटर ने असेस करना है कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन मटेरियलिटी से ऊपर तो नहीं है, और अगर मटेरियलिटी से ऊपर है तो ऑडिटर कंसिडर कर सकता है रिपोर्ट को मॉडिफाई करना, और अगर मटेरियलिटी से ऊपर नहीं है, ऑडिटर असेस कर लेता है तो ML पे ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म 29 में एक आम से एडवोकेट का नाम दिया होता है कि वो नॉर्मल सी टेंशन लेता है, लेकिन जो बड़े केसेस होते हैं उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े केसेस, उनको बड़े बड़े वकील जो हैं उनको केसेस दे दिए जाते हैं. अब उसमें कंफर्मेशन तो उन्हीं की आती है जिनके पास केसेस होते हैं, तो या वो ये कि उसको बताएं ही ना, और सिर्फ लीगल एडवाइस जो बुक्स में कंटेंट है उसकी कंफर्मेशन लेके तो हमें वो फारिग कर दें, हमें वो पता ही ना हो कि भी इनके वो केसेस भी चल रहे हैं. सर ये पॉइंट जी मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन. मैं समझ गया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म 29 में जो लीगल एडवाइजर का नाम आ रहा है वो तो जस्ट शायद एक फॉर्मेलिटी के लिए नाम डाला हुआ है, एक्चुअल केसेस तो दूसरे देख रहे हैं. तो इसके लिए ऑडिटर एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहा होता है ऑन कंप्लीटनेस में कौन कौन से नाम आ रहे हैं लीगल एडवाइजर के, ये मैनेजमेंट से ही ले रहा होता है. एक ऑडिटर का अपना प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस रिकॉर्ड भी होता है, पिछले ऑडिटर से भी इस हवाले से इंक्वायरीज कर सकता है अगर रोटेशन का केस है. इन एनी केस हमारा व्यू ये है कि फॉर्म ए अमूमी हमने ऑब्जर्व किया है कि वो रिवाइज ही नहीं किया होता, अदरवाइज एक छोटी सी कंफर्मेशन जो साहब फॉर्म ए में मौजूद है उनसे भी ले ली जाती है. और डेफिनेटली जो बड़े बड़े केसेस को देख रहे हैं उनसे तो कंफर्मेशन लाजमी होती है, क्योंकि यूजुअली उनसे एसोसिएटेड कंटीजेंसीज के डिस्क्लोजर आ रहे होते हैं. जी. तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फरमाया कि सब्सिक्वेंट पीरियड की 2 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो उनको जो है वो चेक किया जाए. अब बड़े ऑडिट्स में तो मतलब है कि वो 15-15, 20-20 जो है वो बैंक अकाउंट होते हैं और उसमें सैकड़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शन होती हैं, और वो तो एक मतलब एक फुल फ्लैज असाइनमेंट है कि उसको अगर आप ये तो नहीं कर सकते कि 1-2 दिनों में उसको रिव्यू कर लें. सर सैंपल कैसे पॉसिबल पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं फिर शेयर करता हूँ इसका जवाब. जी यही क्वेश्चन. सर ये ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग की तरफ आपने रेफर की है.
और ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग का मैंने प्रोसीजर मेन सोर्स डॉक्यूमेंट बताया था। अगेन ऑडिटर ने प्रोसीजर्स तो सैंपल पे लगाने हैं, तो सैंपल एवेल्युएट करेगा, अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करेगा कि उसने हर बैंक स्टेटमेंट से कितने उठाने हैं। हो सकता है कि मतलब सारी ट्रांजैक्शन 100% तो नहीं देखेगा, सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन उठा लेगा, उनमें से अगर कोई चीज आइडेंटिफाई होती है तो फिर वो अपना सैंपल बढ़ाएगा, अदरवाइज उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी। Sir, was I able to answer? जी थैंक यू। Thank you, sir. Sir, please. अच्छा मैं करूँ जी, जी, please. ये जनरल सा सवाल तो नहीं है, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि माइन इज वेरी स्मॉल फर्म, हमारे 2-3 पार्टनर भी थे, अब एक सिंगल ही है मैं, बट फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स में जब से स्टार्टिंग फ्रॉम 200 एंड ये कब से हुई थी ये स्टार्ट QCR 2003 से, हाँ जी, जी, तो framework फर्स्ट डे उसका। से माय फर्म इज मतलब छोटी सी है, बट earlier on there were more partners, but now I'm single, मतलब इस वक्त currently। लेकिन जितना मैं और since then मेरी कंटिन्यू कर रही है QCR में, तो जितने भी मेरे आए हैं और मेरे सबसे प्यार है, रिसेंटली तो इजलाल था, अब आप लोग आए हैं, मुझे प्यार था, लेकिन जितना मैं डरता हूँ इससे, मुझे खौफ है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जनरल क्या हमारा ये बाजवा से या एनी अदर वन, लेकिन जितना मुझे खौफ आता है, और थ्रू आउट, हालांकि छोटी सी मेरी है, पीनट भी नहीं आप समझेंगे, बट ऑल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट डे मैं करता है कुछ, मैं थोड़ा फॉरेन एक्सपीरियंस भी मुझे है, तो आई वांटेड टू भी थोड़ा सा मोरालिटी होनी चाहिए, कोई मतलब इस सक्सेसिटी होनी चाहिए इसमें, बट जितना मुझे इससे खौफ आता है, और मेरी ड्यू है, शायद आप लोगों ने डिले की हुई कोई वजह से फॉर सर्टेन रीजंस, तो दिस जो है ना, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप निकाल लेते हैं, निटी ग्रिटी भी जो है ना, जिसमें मटेरियलिटी भी नहीं होती मोस्ट कई दफ़ा, तो मेरा वो किधर इजहार शायद सुन भी रहा होगा, मे बी इज है, तो मुझे मतलब मेरे प्यार भी है, जस्ट माय बच्चों की तरह है, बट स्टिल आई वुड से कुछ हाथ हौला रखना चाहिए, मतलब यू हैव टू बी, मतलब आपको देखें, पॉइंट इज I'm telling you the truth है, the truth मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, the truth है, आप देखें we are small firm generally, big 4 दुनिया में फ्रॉड भी आपने कमिट किया, आप बिग 4-5 ने किया, एनीवे आप देख लें हिस्ट्री आपकी, ये छोटे बच्चे जो हैं उनको आप थोड़ा सा कोई ख्याल करना चाहिए, मतलब ये कि सर मैं शेयर करता मुझे हूँ। बच्चों से जो करने आते हैं ऑडिट, वेरी गुड, आई लव देम, मेरे बच्चे ही हैं वो, बट स्टिल मतलब हाथ हौला रखना चाहिए बहुत ज्यादा, सर मैं शेयर करता हूँ, मतलब वो नहीं होना चाहिए, देखें कुछ कोई भी आ जाए, आई टेल यू मेरे बेटे जी की जी श्योर बात श्योर सुनिए, आप कंप्लीट जो भी करेगा ना ऑडिट, आप कर रहे होंगे ना, तो अगर आप मुझे लगा दें आपके ऊपर, आई फाइंड फॉल्ट इन यू आल्सो, सही इट इज इम्पॉसिबल, रिश्ते तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, द बिग फोर्स क्या है, मैं आपको जानता हूं, आई वर्क विद द बिग फोर, आई नो देम, दुनिया में फ्रॉड जितने भी आपने जो बनाए हुए हैं वो सब बिग फोर ने किए हुए हैं, सर मैं शेयर आपको करता हूँ। इसलिए ये बेटे मेरे प्यार से कह रहा हूँ, आप कर लें, क्या होगा, निकाल लेंगे आप, व्हाट द हेल वुड गो, उसकी रोजी का जो भी है, बट आप शुड भी, मतलब मैं इन बच्चों को, आप जितने भी हैं आप मेरे, आई वुड लाइक टू बी जस्ट बी सी दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जी जी बिल्कुल ठीक है, मटेरियलिटी ना, ऑफ कोर्स मटेरियलिटी नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल दैट शुड बी ऐसे ही सर कंसीडर्ड, देखें, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं मेरे सीनियर जो बिग जी। 4 के बिग 5 के बैठे हुए हैं, आई नो देम पर्सनली आल्सो, और सही। मैं जानता हूँ वो कितने उनकी क्या सर हम प्लीज उस साइड पे ना जाएं, मेरी रिक्वेस्ट होगी, देखें पब्लिक फोरम है, मैं इसमें सर देखें जी थैंक यू सो मच सर, मैं आपके कमेंट्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी ये ज़रूर मतलब किसी को पिन पॉइंट किए बगैर वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, और इवन ऑडिट असर्शन ये मौजूद है कि पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, सो जहाँ तक फियर फैक्टर का ताल्लुक है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी टीम आइडेंटिफाई करती है फॉर वैल्यू एडिशन, कि अगर हमारे रिव्यूअर देख रहे हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक चीज़ ऐसी है जो फर्म में वैल्यू ऐड कर सकती है, तो वो ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं। हैविंग सेड दैट पोटेंशियल इम्पैक्ट उसका मटेरियल है नहीं है, यूजुअली ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बिन इन ICAPS फॉर ओवर 8 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस जो नज़र आ रही होती हैं वो सिर्फ वैल्यू एडिशन की हैं, मगर ये फियर फैक्टर जो है ना वो हर बंदे का डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट आ जाता है। मैं
सही में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर, इस पे कुछ डिस्कशन हम ना बाद में भी करते हैं। जी अच्छा अच्छा, वैसे बहुत सारे सर प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिसीवेबल। सपोज करें वो मैंने मूवमेंट स्केड्यूल ले लिया जिसमें ओपनिंग है, एक्टिविटी आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, सारे पार्टीज आ गई। उसमें से मैंने 50 पार्टीज की एक्टिविटी को जो है मैं समझता हूँ कि वो क्रिटिकल है, जो मुझे अपना रिस्क कवर करने के लिए इसको करनी है। अब क्या उन 50 पार्टीज को ही मुझे कंफर्मेशन सेंड करनी है एक्सटर्नल के लिए, कि या उसमें भी मैं सैंपल फर्दर कर सकता हूँ कि ठीक है कुछ कर लेता हूँ कुछ रहने देता हूँ? देखिए इसमें देखिए ऑडिटर ने शुरू में सिलेक्ट करना है सैंपल और फिर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ना कि वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ले और उसके बाद देखे। और सैम्पलिंग करते हुए ऑडिटर ने ये देखना है कि पॉपुलेशन जो है उसमें ईच आइटम शुड हैव चांस ऑफ सिलेक्शन। ये भी एक एरर नोट की जाती है कि लोग जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ऑडिटर जब सिलेक्शन कर रहा होता है तो सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स को सिलेक्ट कर लेगा और लो वैल्यू आइटम्स मिस हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ईच आइटम शुड हैव चांस ऑफ सिलेक्शन। वंस सिलेक्टेड उसके बाद ऑडिटर खुद कॉल करेगा कि मैंने इस सैंपल पे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइमरीली लोग कंफर्मेशन सबसे पहले भेज रहे होते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी एविडेंस इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। यूजुअली कंफर्मेशन सबको भेज रहे होते हैं लेकिन उसका वेट नहीं करते, उस पर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उसमें इट कुड बी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, इट कुड बी स्पेसिफिक इनवाइस टेस्टिंग, या इट कुड बी जिस तरह आपने कहा कि इट कुड बी मूवमेंट वेरिफिकेशन। या ऑडिटर की कॉल है, चाहे तो वो डिवाइड कर दे तीनों प्रोसीजर्स के, इतनी पार्टियों पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ। कंफर्मेशन अगर उसे मिल जाती है तो फिर अगेन ये ऑडिटर की कॉल है कि वो खुद डिसाइड करेगा अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करते हुए कि क्या मैंने इस कंफर्मेशन पे रिलाई करना है या मुझे इस कंफर्मेशन पे मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। ये उसकी अपनी रिस्क एपिटाइट है। इसका मतलब ये होगा कि जो मैंने 50 पार्टी सेलेक्ट की हैं जो मेरे सैंपल में आ गई हैं उन सबको मैंने कंफर्मेशन जो है डिस्पैच करनी है। अगेन नॉट नेसेसरी, मैंने तो एज प्राइमरी प्रोसीजर शेयर किया, नॉट नेसेसरी। हो सकता है ऑडिटर अगर समझता है उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में कि उसने 50 पार्टीज के ऊपर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स ही लगा रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। सही, ठीक, थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है जो QCR का प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इसमें डिले काफ़ी होता है। मैं भी QCR टीम का मेंबर था कुछ अर्सा पहले, तो अभी 8-9 मंथ्स हुए हैं फर्म स्टार्ट किए, लेकिन मैंने मार्च में अप्लाई किया QCR के लिए। सही है। क्योंकि ऑब्वियसली फर्म तो अभी स्मॉल प्रैक्टिस है, लेकिन जैसे आपने वैल्यू एडिटिव एक्टिविटीज़ की और इस तरह सजेशंस की बात की है, उनकी बेसिस पे, क्योंकि मैं भी पार्ट था तो मुझे पता है यार इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुझे ग्रो करने के लिए। लेकिन अब उसमें वही इशू होगा कि ऑब्वियसली आप लोगों पे भी बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी करते करते कुछ साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाना है फाइनल रिपोर्ट आने तक या QCR रेटिंग मिलने तक। तो उस पर प्लीज़ कुछ बताएं। मैं शेयर करता हूँ। एक्चुअली जिस तरह आपने कहा कि आप भी हिस्सा थे, मेरे पास जितने रिव्यूअर्स मौजूद थे शायद 6-8 महीने पहले, उनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं है। सो ऑल टीम रोटेटेड बट एनीवे वी हैव हायर्ड न्यू टीम, न्यू यंग ब्लड, और हम कोशिश कर रहे हैं नई फर्म्स पे भी काम कर रहे हैं उसमें, बल्कि मैं आपसे बाद में भी मिलता हूँ, उस पर भी हम काम किसी तरीके से कर रहे हैं, भले स्लो स्पीड हो, लेकिन न्यू फर्म्स को भी रिव्यू हम कर रहे हैं। सर जेवी टेस्टिंग पे मेरा सवाल है कि आपने काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हों। अगर ये एक इनिशियल प्रोसेस है प्लानिंग फेज के ऊपर, स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वॉक थ्रू करना है इसके ऊपर। अब अगर इस फेज के ऊपर हमें उसमें कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई नहीं होती उस हेड के अंदर, व्हाट टू डॉक्यूमेंट इन दिस हेड ऑफ काउंट? मैं सॉरी रीफ्रेज करते हैं। जेवी टेस्टिंग हम कर रहे हैं, फिर ठीक है, आपने काफी सारे फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर सब्सिक्वेंट उसकी रियलाइजेशन यानी कि रिवर्सल्स हो रही हैं, लेट टाइम हो रहा है, संडेज के ऊपर है, ये सारे फैक्टर्स हैं। हमने डंप किया, उसके ऊपर हमने आइडेंटिफिकेशन की, कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई इस फेज के ऊपर, व्हाट टू डॉक्यूमेंट, लाइक हम क्या जेवीज के अंदर फर्दर डॉक्यूमेंट करें? मैं शेयर करता हूँ कि ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर्स जिस तरह आप बता रहे हैं जो परफॉर्म किए, मैनेजमेंट से डिस्कस करके ही, मैनेजमेंट से ही चीजें ली, और उनको डॉक्यूमेंट करने के बाद जब कुछ भी नेगेटिव हाईलाइट नहीं हुआ तो अपना कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई जेवी टेस्टिंग हमने परफॉर्म कर ली है और कोई अनयूजुअल एनॉमली हाईलाइट। So there is no number of JVs we need to document in this head of count. Its conclusion is
clear at this point of time. इसमें मैं ये शेयर करूंगा कि पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो भी रिक्वायर्ड है, जो हम डॉक्यूमेंटेशन वॉक थ्रू का कर रहे हैं इस फेज के ऊपर walk और through- वॉक थ्रू कर रहे हैं, और उसमें हमें आइडेंटिफाई नहीं हुई कोई ऐसी चीज जो कि हम डॉक्यूमेंट करें उस फेज के ऊपर। सही है, ये अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मैंने हर टाइप जो आइडेंटिफाई की है अनयूजुअल एनॉमली इन जो कि जेवीज में हो सकती है, उनमें किस वॉक थ्रू करते हुए एक एक ट्रांजैक्शन मैंने उठाई और उसमें कोई भी अनयूजुअल एनॉमली आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो क्या मुझे फर्दर काम करने की जरूरत है या नहीं? जरूरत तो है, देखें एग्जीक्यूशन फेज के ऊपर सारी वर्किंग तो होगी उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन एक वॉक थ्रू कर रहे हैं उसमें नहीं आइडेंटिफाई हुई तो हम कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं उसके। ठीक है, आप अपना कंक्लूजन इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। रिस्क एपिटाइट इस पर डिपेंड करती है ऑडिटर की, बिल्कुल ठीक। ऑडिटर का रिस्क उस यानी पर्टिकुलर उसमें कोई भी हमें जरूरत नहीं है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की इस फेज के ऊपर ऑब्वियसली। लेकिन जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उसको वो डॉक्यूमेंट तो करेंगे। डॉक्यूमेंट हो रहा है, मैं जेवीज की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं होता तो हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे उसके ऊपर। क्या क्लैरिटी है इस पे? अच्छा, एक और आपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बात की कि हम एजिंग करें और उसकी वो ठीक है। एट हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, लॉन्ग हिस्ट्री है कंपनी की, उसके अंदर मल्टीपल केसेस चल रहे होते हैं एट अ टाइम के ऊपर। तो जो आप एजिंग की बात कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स एफबीआर अपने एंड पे कर रहा होता है और वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुई होती हैं क्लाइंट की तरफ से, तो उस फेज के ऊपर आप क्या रिकमेंड करते हैं? व्हाट टू डॉक्यूमेंट? लाइक क्लैरिटी नहीं होती ना एफबीआर को होती है ना उसको क्लाइंट को उस फेज के ऊपर होती है कि हम स्पेसिफिकली, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, रिफंड्स की और सेल टैक्स की, कुछ एडजस्टमेंट क्लाइंट अपने एफबीआर अपने एंड पे कर देता है, लेकिन क्लाइंट वो एडजस्टमेंट चैलेंज करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम अगर बीइंग ऑडिटर बात करें तो वो रिसीवेबल तो है, ठीक है, लेकिन एफबीआर उसको रिसीवेबल कंसीडर नहीं कर रहा होता। उस फेज के ऊपर आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखें, ये अगेन मैनेजमेंट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लिटिगेशन चल रही है, मामला इन प्रोसेस है, क्या ऑडिटर ने इससे एसोसिएटेड लिटिगेशन की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू की है? क्या ऑडिटर ने लीगल एडवाइजर का जो रिप्लाई है उसको देखा है? क्या लीगल एडवाइजर का रिप्लाई ये कह रहा है कि जो क्लेम ये कर रहे हैं ये वाकई रिसीव हो भी जाएगा और मैनेजमेंट खुद भी एक्सपेक्ट कर रही है? देखें, ऑडिटर का अपना भी एक नॉलेज है, क्योंकि टैक्स के हवाले से, टैक्स के मामलात के हवाले से अगर वाकई ही जेन्युइन प्ली है, ऑडिटर समझता है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट ये समझती है, और मामलात जिस तरह आपने बताए, हो सकता है ऑडिटर अपील में गया ही ना हो सकता है असेसमेंट ऑर्डर मौजूद हो और मामला क्लोज हो चुके हो, एफबीआर उसको नहीं समझ रहा, मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी बात कर रहा हूँ। सो इस चीज़ की एक असेसमेंट ऑडिटर की मौजूद हो डॉक्यूमेंटेशन की मद में या डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में, ताकि हमारी टीम के लोग जब आए तो वो इस चीज़ को देख सकें कि हाँ, ऑडिटर ने एक रीजनेबल एश्योरेंस ले ली। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन एनआरबी टेस्टिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो स्टोर्स होते हैं और रॉ मटेरियल है वो नॉर्मली सेल नहीं किए जाते, वो यूज़ होते हैं फिनिश गुड की प्रोडक्शन में। तो नॉर्मली जो रिव्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप स्टोर्स की और रॉ मटेरियल की एनआरबी टेस्टिंग भी की जाए। सही, तो आपका इसमें क्या व्यू है? ये स्टिल रिक्वायर्ड है एज पर स्टैंडर्ड के आपने टेस्टिंग करनी है इसकी, क्योंकि वो यूज़ होते हैं, सेल नहीं होते। सही। लेकिन इसमें एक ऑडिटर की असेसमेंट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि किस टाइप के पड़े हुए हैं, क्या मैनेजमेंट ने उसके ऊपर कोई प्रोसीजर किए हैं कि वाकई उनमें से कोई ऑब्सोलेसेंस तो नहीं हो गई। वाकई अगर वो ऑडिटर की अगर एक रीजनेबल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जो ये बता रही है कि ये इम्पेयर नहीं हो गए, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है कि प्रैक्टिकली इस तरह के स्टांसेस होते हैं, बट ऑन द कंट्रेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बाज़ जगहों पे इस तरह के नहीं भी चल रहे होते, बाज़ जगहों पे उनकी मूवमेंट ज़्यादा चल रही होती है। तो जिस तरह आपने बताया, ऑडिटर की एक डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल में मौजूद हो जो ये बता रही हो कि ये मौजूद हैं इस कैटेगरी के, और इसमें हमने जब फिजिकल वेरिफिकेशन की तो कुछ चीज़ों को हमने सैंपल बेस पे असेस भी कर लिया, हमने रिव्यू भी कर लिया और अपना कंक्लूजन इस चीज़ पर डॉक्यूमेंट कर ले। जहां हमारे रिव्यूअर इस पे पॉइंट आउट तभी करते हैं जब कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होती। सही। सर, सेकंडली जो रिव्यूअर्स के पॉइंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, हाई रिस्क होता है, मॉडरेट और लो होता है, और नॉर्मली पॉइंट्स रिव्यूअर के होते हैं वो हाई में ले रहा होता है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया या गाइडलाइंस हैं कि हो ही असेस के हायर है वो उसके मुताबिक? मेरे मुताबिक वो मॉडरेट या लोअर हो सकता है, क्वाइट जजमेंटल एरिया है, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि वो नॉर्मली जो पॉइंट्स होते हैं वो हायर रिस्क की तरफ ही जा रहे होते हैं?
नहीं, ये लग रहा होता है, वो फियर फैक्टर वाली बात ये कि लग रहा होता है, लेकिन मेजोरिटी पॉइंट्स इस साइड पे नहीं होते। मैं जहाँ चीज़ें देख रहा हूँ वहाँ ज़्यादा पॉइंट हमारे एजुकेटिव साइड के ही होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मतलब आप देखेंगे जो शायद डरे होते हैं, बट स्टिल बहुत सारी फर्म्स माशाल्लाह QCR रेटिंग में हैं और हैं। वो टफ सिचुएशन से गुजरते हैं, शायद वो ये कहते हैं कि यार बहुत सारे पॉइंट्स निकल आए, बट फीडबैक बाद में ये आता है कि हाँ यार आगे। सो मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है इस हवाले से। रिस्क के हवाले से जिस तरह आपने कहा, ये ऑडिटर की जजमेंट कॉल है, जहाँ ऑडिटर डॉक्यूमेंट कर रहा है रिस्क की, वहाँ वो अपने रिस्की एरियाज बता रहा होता है और फिर मेंशन कर रहा होता है कि ये रिस्की है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से इस चीज़ को कवर कर रहा होता है। अगर वो जी ठीक है, मैंने सॉरी बहुत टाइम ऊपर खींच लिया, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर्स बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लोगों ने बड़ा जी मैं अवेलेबल हूँ, अगर कोई डिस्कस करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।